Please unmute, ma'am. A warm and pleasant good morning to everyone. You all are heartily welcome to this webinar on the topic financial education. Today, we have among us an eminent resource person, Dr. Sanjay Kumar Agarwal. I welcome our Honorable Chief Guest, Dr. Surinder Kumar, Principal Government SPMR College of Commerce, Jammu. Now, I invite Professor Rita Mania for formal welcome address. Thank you, Professor Shipra. Am I audible? Yes, ma'am. A very warm and cherished morning to all. We are highly honored to have our chief guest, Dr. Surinder Kumar, Principal, Government SPMR College of Commerce. We are extremely happy to welcome you, sir. On behalf of my college, I welcome our distinguished resource person, Dr. Sanjay Kumar Agarwal, financial education expert. We are grateful to have you here. I welcome you, sir. I welcome all the teaching faculty members, non-teaching faculty members, students of different colleges, PG schools, and everyone present here. I'm pleased to inform that the Manodarpan Career Counseling Cell of Government SPMR College of Commerce, a constituent college of Cluster University Jammu, is organizing today a webinar on financial education. When we discuss financial education, we are talking about skills, knowledge, principles, learning process of managing money more effectively throughout our lives. Knowledge about financial matters help us to take effective action that fulfill the individual's goal. Financial education help us to make important financial decisions, to improve our financial literacy as well as financial well-being. Now, I request our worthy chief guest, Dr. Surinder Kumar, to speak on the occasion. Thank you, Professor Rita. A very good morning to all. I am very pleased to be a part of this program, which is a webinar on financial education being organized by the Manodarpan Career Counseling Cell of Government SPMR College of Commerce in collaboration with PFRDA. The topic chosen is of utmost importance for each and every one of us. And today's resource person, Dr. Sanjay Kumar Agarwal, who's expert in the field, will be sharing his views with us. I'm sure that this talk will be of great importance for all of us, and we will get knowledge about how to manage our finance, because finance has a great role in every individual's life, and management of finance is of utmost importance to lead a good and healthy life. I am thankful and also welcome Dr. Sanjay Kumar Agarwal for sparing his valuable time for this important interaction. I convey my blessings to the Manodarpan Career Counseling Cell for organizing this event, which is useful for each and every one of us. I convey my best wishes, and I welcome all the participants to this event. Thank you very much.
Thank you, sir. So today we have among us an eminent resource person, Dr. Sanjay Kumar Agarwal, financial education expert. He is PhD in data science. He has published 8 books and 23 research papers. He is mentor for Change, Niti Aayog, Government of India. He is mentor startups, Uttarakhand. He is head capacity building and skill development cell, visiting national and international institutes, and he is a financial education resource person. So today he will be enlightening us on basic personal financial strategy, basic investment skills, systematic ways for investment, new trends in market about smart finance. So now I invite our speaker, Dr. Sanjay Kumar Agarwal, to go for the proceedings of the webinar. I welcome you, sir. Thank you very much, Dr. Rita Benia, for warm welcome and nice introduction. Am I audible to you, ma'am? Yeah, sir, absolutely. Thank you. Thank you, ma'am. So first of all, I'm thankful to the management and principal, the Professor Surinder Kumar ji of Government SPMR College of Commerce, Jammu. Professor Asu Manhas, the head of Manodarpan Career Counseling Cell, and taking all the pain to make this event successful. Dr. Rita, Dr. Shipra, Dr. Nazia, and other faculty member from the institute and participant from the Pan India. So I welcome you all, and as sir said, the financial management is an important topic nowadays because every day we are struggling for better management of our finances. And if I say that financial management is a important life skill. So first of all, we must be aware about the importance of ourselves. As an investor, are we important for the financial market or not? Or are we important for the country, or by investing our money, are we doing some contribution towards the growth of the country or not? So to understand this concept, I'm asking one question to all the participants, that just imagine if there is no one to invest their money in any financial institution like bank, insurance company, mutual fund, securities market. So is this financial market exist? You can submit your response into the chat box. So is the financial market exist without an investor? Am I audible? Let this session be more interactive rather than monotonous, because I want active participation from your side. So I'm asking, is this financial market? Yes, good. Shiresh Sharma said investors are of prime importance. Good. So without an investor, financial market cannot exist. Totally depend on investor. So you are the one of the important or the key driver of the financial market. And the money you have invested, if someone take loan from this financial institution, start their venture, earn their bread and butter, and provide livelihood to more families. So your investment develop the livelihood generation, livelihood development for the others, and the known planned expenditures meet out from the investors' money only. The money you have paid in the form of tax is the income of the government, and government plan this income in their budget. But all non-planned expenditures
comes through from the investors' money. So you are aware that government is also taking loan, and nowadays one portal is owned by the RBI, that is the RBI Retail Investor. From this portal you can invest your money at a higher rate of interest. So now the second question arises: without an objective, we can't do anything. So why we invest our money? So first of all, we have some certain goals in our hand. Without these goals, we are unable to enjoy our investments. And the first and foremost question, what is the basic difference between money and finance? How we can identify that this money is finance and that money is money? So money is just a currency, and with money we meet out our expenses, and the surplus money which we are having in our hand for further accumulation of money or investment is known as finance. So how we can identify the money portion and finance portion in our income? So we have some certain income. So for that purpose, we have to plan our budget. So in this budget, we have inflow and outflow of our money. And outflow means the expenditures. And we can manage our outflow because our inflow is almost certain, or we can enhance up to some extent, but we can curtail our outflow. So we can describe our expenditures in needs and wants, needs and desires, and we can curtail our desires. And the surplus money which we are having in our hand for further accumulation of money is known as finance, or in daily terminology we call it savings. So you know the world renowned investor Warren Buffett, what he says, that if you if you save, after spending, you can't achieve financial freedom. If you want to achieve financial freedom, to save first, then spend. और हमारे यहाँ पुरानी कहावत भी है कि लोग पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पेट काट करके अपने जीवन में समृद्धि लेकर के आते हैं, और हम सभी लोग समृद्धि चाहते हैं. तो पेट काटने का मतलब ये कि we can curtail our desires, compromise with our desires and enjoy financial freedom. And the reason for investment is to save our tomorrow. हम अपने कल को बचाने के लिए आज पैसा बचाते हैं. Why? Because our tomorrow is uncertain. We don't know what is going to be happening next second. So for that purpose, we have to save. Because every milestone in our life is achieved only through our investment and savings. अब आप मुझे कोई ऐसे व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो जॉब करके अमीर बनाओ, जो नौकरी करके अमीर बनाओ? ऐसा कोई व्यक्ति है आपके पास? Good. Shreya says no. Good. So how you make yourself rich? समृद्ध कैसे हो सकते हैं? By investing your money. आप अपने घर में भी देखते होंगे कि जो आपके पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, शादी के लिए कोई प्लॉट लेकर के रखते हैं, मीन्स गोल्ड लेकर के रखते हैं, कुछ ना कुछ वो इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं कि जब ये लोग बड़े होंगे, इनको एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत होगी, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट उस समय काम आएंगे. और आज हम एक और इन्वेस्टमेंट गोल की बात करने वाले हैं, दैट इज द रिटायरमेंट. क्योंकि आज के समय में देयर इज नो सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल, and this program is organized by Pension Fund Regulatory Development Authority of India, which is a apex regulator of retirement products from the government of India. And we have a training on the retirement planner
So why retirement? Because nowadays the life expectancy in India is near about 78 years. And if a person get retired at the age of 60, which is a standard age of retirement, so he has to live 18 years extra. And for this 18 years, the person need money. तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा आता है जो उसने अपने वर्किंग लाइफ टाइम में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, उसी से ये पैसा आपके पास आता है. So that's why retirement planning is very much important nowadays. So it's a life cycle of a person. You all are graduating from the school, from the college, getting your first job, starting a family, buying your first home, then peak earning phase, and then retired life. And there is a misconception about the retirement life. So what is a accurate retirement age? अगर वो रिटायरमेंट एज की बात करें तो एक चीज समझ में आती है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो 60 साल के बाद आदमी रिटायर हो जाता है, बट इट्स नॉट एक्चुअल रिटायरमेंट. हम लोग जॉब करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं जस्ट टू अर्न मनी एंड एक्युमुलेट हैंडसम अमाउंट टू एंजॉय अवर लाइफ. तो जब आपको लगे कि आपके पास इतना पैसा हो गया है कि आप अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं और जो भी आपकी हॉबीज हैं, जो भी सर्विस आप करना चाहते हैं, उसको करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आप लोग बाकी का समय बिता सकते हैं. सो दैट द ट्रू एज ऑफ योर रिटायरमेंट. क्योंकि जब हम लोग पैसा अर्न करते हैं तो somewhere we are compromising with the objective of our life. क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम उसके साथ कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं और 60 साल तक फाइनेंशियल स्ट्रगल के साथ गुजार देते हैं. तो आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है. तो जब भी आपको लगे कि ये दिस इज अ राइट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप देखते हो क्रिकेट में भी जो प्लेयर्स हैं वो एक टाइम के बाद संन्यास ले लेते हैं. सो दैट संन्यास मीन्स द रिटायरमेंट. तो आप अपने फाइनेंसेस को इतना इफेक्टिवली मैनेज करें कि आप जल्दी अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर पाए. तो रिटायरमेंट मीन्स द एंजॉयमेंट ऑफ द लाइफ and the living of the true life without any financial hassles. और आजकल हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर्स में देखें तो वहां पर तो लोग 40-45 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव अ हैंडसम अर्निंग इन देयर हैंड्स इन देयर बिगिनिंग ऑफ देयर कैरियर, और वो जल्दी रिटायर होकर के अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं. तो जब हम लोग जॉब करते हैं तो वहां पे हम लोग एक्युमुलेशन ऑफ एसेट्स रहती हैं एंड एक अपना रिटायरमेंट कॉर्पस हम लोग तैयार करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में अपना कैरियर स्टार्ट करता है और 55 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता है, तो उसके पास टोटल वर्किंग लाइफ स्पॉन कितना है? 30 इयर्स का है. और यही 30 ईयर में अपने नेक्स्ट 30 इयर्स को उसको प्लान करना होगा. सो दैट इज अ पे चेक टू अ सेल्फ चेक, और यही फिर बाद में आपको वापस मिलता है. अब यहाँ पे हम लोग अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, आज के समय में हमारे पास लगभग 10% पॉपुलेशन 60 ईयर से ऊपर की है और 2050 तक ये 19% पॉपुलेशन हमारी 60 साल से ऊपर की हो जाएगी. सो इट्स अ प्रोजेक्शन, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं वी हैव 140 करोड़ इन नंबर्स. तो 140 करोड़ में से जो है हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन गेट ओल्ड एट 2050.
And what is pension? पेंशन क्या है? इट्स अ नीड फॉर आवर ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। जो हम पैसा अर्न करते हैं, जो हम लोग एक कॉर्पस तैयार करते हैं, उससे जो हमें पैसा वापस मिलता है, एन्युटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड पेंशन एंड इट्स आवर ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। तो ये हमारा तीसरा बेटा होता है, इज आवर थर्ड चिल्ड्रन, जो हमें इनकम सिक्योरिटी देता है, और ये कभी फेल नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, जो आपके फाइनेंशियल गोल है, इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। यू हैव सीन वन फेमस मूवी, उसमें एक सीन है, एक्टर जो है भगवान के सामने 3 पिगी बैंक रखता है। पहली गुल्लक पे उसने लिखा है माँ के इलाज के लिए, दूसरी गुल्लक पे लिखा है बहन की शादी के लिए, तीसरी गुल्लक पे लिखा है भाई की पढ़ाई के लिए। आप में से किसी ने ये मूवी देखी है? Yes, Shreyas, yes. Can you name? Yes, सलमान खान की मूवी है। गुड, ओके। तो मैं मूवी का नाम आपको बताता हूँ, इट्स मुझसे शादी करोगी। तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यही है टू डिस्कस दिस सीन। अब इस सीन में ये 3 जो हैं, द 3 पिगी बैंक, जिसपे उसने लिखा था माँ के इलाज के लिए, बहन की शादी के लिए और भाई की पढ़ाई के लिए। सो व्हाट आर these 3? These 3 आर द फाइनेंशियल गोल ऑफ दैट पर्सन। ये उस व्यक्ति के फाइनेंशियल गोल है। इसी तरह से आपके अपने फाइनेंशियल लायबिलिटीज होंगी। सो यू जस्ट फाइंड आउट योर फाइनेंशियल लायबिलिटी। और बिकॉज वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम विद अ मनोदर्पण कैरियर काउंसलिंग सेल, और नाम भी मैडम ने बड़ा सुंदर रखा है, मनोदर्पण। तो यही हमारे गोल सेटिंग का फंडामेंटल होता है। सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए, देन यू फाइंड आउट अ स्पेसिफिक गोल। अब स्पेसिफिक गोल आपके पास आ गए हैं कि भाई आपको अपनी लाइफ टाइम में माँ का इलाज करना है, बहन की शादी करनी है और भाई की पढ़ाई करवानी है। अब बात रहती है कि भाई लिखने से क्या होगा? लिखने से एक अफर्मेशन हो जाती है कि भाई ये 3 मेरे फाइनेंशियल गोल हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि उसने 3 पिगी बैंक, 3 गुल्लक उसने भगवान के सामने क्यों रखी? सो यू हैव अ ग्रेट लेसन फ्रॉम दिस सीन। क्यों? क्योंकि जब हम लोग गोल को लिख लेते हैं तो डेली हमें उसे विजुलाइज करना होता है, और विजुलाइज करने के लिए हम उसको ऐसी जगह पर रखते हैं जहां डेली दिन में हम लोग एक बार जरूर जाते हैं। तो हम लोग एटलीस्ट दिन में एक बार भगवान के पास जरूर जाते हैं, चाहे सुबह जाएं, चाहे शाम को जाएं, चाहे रात को जाएं। तो उससे डेली हम लोग अपने गोल्स को विजुलाइज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि भाई उसने 3 पिगी बैंक क्यों रखे? एक से भी काम हो सकता था, 2 के पैसे बचते। Why he put 3 पिगी बैंक्स? तो ये हमारे जब फाइनेंशियल गोल्स हैं या कोई भी गोल है, सारे पैरेलल चलते हैं, बिकॉज एसोसिएटेड विद टाइम। अब जैसे मैं बात करूं माँ का इलाज कराना है, तो माँ का इलाज कितने समय में कराना होगा? लगभग 1 साल में। कोई डिजीज आइडेंटिफाई हो गया, केवल 1 साल 6 महीने का समय मिला है, और उसी में उसको पैसा इकट्ठा करके माँ का ट्रीटमेंट करवाना। दूसरा, बहन की शादी करनी है, 1 से 3 साल का समय हो सकता है। भाई छोटा है तो उसका टाइम पीरियड 3 से 5 साल या 5 से ज्यादा साल का हो सकता है। तो इस तरह से अगर वो पहले माँ के इलाज को फोकस करे तो 1 साल का समय उसमें निकल गया। देन उसके बाद वो बहन की शादी को फोकस करे, और उसके बाद भाई की पढ़ाई को फोकस करे, तो तब तक भाई की पढ़ाई के बारे में सोचेगा, तब तक भाई की उम्र निकल चुकी होगी।
तो इसलिए जो भी आपके फाइनेंशियल गोल हैं सब पैरेलल चलते हैं और उसके लिए आपको साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब जैसे जो माँ का इलाज है 1 साल में करना है तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म गोल कह सकते हैं, देन मिड टर्म गोल, देन लॉन्ग टर्म गोल। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि मुझे जम्मू से चंडीगढ़ आना है और मेरे पास 4 घंटे का समय है, आई हैव 4 आवर्स इन माय हैंड, तो मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा? बाय एयर हो जाएगा। और मैं कहूं कि मेरे पास 10 घंटे का या 12 घंटे का समय है तो मैं बाय रोड भी आ सकता हूं। और मैं कहूं कि मेरे पास 6 महीने का समय है तो मैं ऑन फुट पैदल चल करके भी आ सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसके लिए हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि एयर के ऊपर हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बाय एयर। तो जो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसके लिए मुझे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, जो मेरे मिड टर्म गोल्स हैं उसके लिए एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म गोल कम इन्वेस्टमेंट करना है, और जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल हैं उसके लिए मैं छोटे छोटे स्टेप से भी, अगर मैं जो भी मेरी डेली 10, 20, 50 रुपए जो मैं बचाना चाहता हूँ उतना बचा करके भी मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो आपके फाइनेंशियल गोल है आप उसको टाइम के साथ एसोसिएट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट फंडामेंटल आता है कि भाई अगर आज हम जिस लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन किए हुए हैं तो क्या 30 साल के बाद भी उसी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें सेम कॉस्ट लगेगी या ज्यादा कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी? यस शिप्रा, इज एनी रिस्पॉन्स? जिस लिविंग स्टैंडर्ड को हम लोग आज मेंटेन किए हुए हैं, अगर मैं कहूं 30 साल के बाद क्या हम लोग सेम लिविंग स्टैंडर्ड को सेम कॉस्ट पर मेंटेन कर पाएंगे क्या? गुड, शिवानी सेज नो। गुड। तो क्या होगा? कॉस्ट इंक्रीज होगी और उसको हम लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन और एक इन्वेस्टर के बीच में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ इन्वेस्टर एंड अ इन्फ्लेशन? दोनों आई है। सो व्हाट इज द रिलेशन? टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन आई आस्क यू वन क्वेश्चन। से if rate of inflation is 7% and rate of return is 3%, so are you in profit or in loss? आप प्रॉफिट में होंगे या लॉस में होंगे? गुड, शिरा says loss. गुड, वेरी गुड आंसर, लॉस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका रिटर्न है, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज अ बेंचमार्क? इज द इन्फ्लेशन ओनली। तो क्या कभी हम अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं? हम सभी इन्वेस्टर ये सबसे बड़ी भूल करते हैं कि हमें सबसे पहले तो बेंचमार्क ही पता नहीं होता। हम लोग महंगाई महंगाई तो करते हैं, लेकिन महंगाई से एक इन्वेस्टर कैसे अफेक्टेड हो रहा है वी डोंट नो इट। तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए व्हाट इज अ बेंचमार्क, हाउ टू कंपेयर द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। सो बेंचमार्क इज द इन्फ्लेशन। अगर आपका रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्फ्लेशन, सो यू आर बुकिंग लॉस, आप घाटे में हैं। हम लोग सब्जी वाले के साथ बड़ा नेगोशिएशंस करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, और जब वो 10 रुपए की 50 रुपए की सब्जी हमें 40 रुपए में देता है तो हम लोग विनर के रूप में बाहर आते हैं। लेकिन क्या कभी हम लोग अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी बार्गेन करते हैं जहां हमारा मैक्सिमम पैसा रखा हुआ है? हम लोग वहां पर 15-20 मिनट लगाते हैं, लेकिन यहाँ 10 मिनट भी हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को कभी रिव्यू करने के लिए नहीं लगाते। तो दैट्स व्हाई हम लोग कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को एंजॉय कर ही नहीं पाते। थ्रू आउट द लाइफ वी आर जस्ट accumulator of money,
पूरे लाइफ टाइम में हम लोग केवल पैसा इकट्ठा करते हुए रह जाते हैं और कभी अपनी जिंदगी को जी ही नहीं पाते। इट्स अ हार्ड फैक्ट ऑफ द लाइफ। तो आज से आप लोग ये फंडामेंटल समझें और अपने इन्वेस्टमेंट को हेल्थी करने की कोशिश करें और इन्वेस्टमेंट से रिटर्न को हेल्थी करने की कोशिश करें, सो दैट व्हेन यू आर एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, जैसा भी अनमोल कह रहे हैं, तो उस समय आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना हेल्थी हो जाए कि वो आपको आपकी सैलरी के बराबर रिटर्न जनरेट करके देने लगे। तो यहाँ पे हम लोग दो बात करते हैं कि भाई जैसे अगर हम लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दो प्रोडक्ट हैं, दैट इज द एनपीएस अब यहाँ पर और अटल पेंशन योजना। उससे पहले एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक मिस्टर इन्वेस्ट हैं जो 25 साल की उम्र से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। तो अगर वो 2000 रुपए पर मंथ भी इन्वेस्ट करते हैं तो 35 साल में उनके लगभग 8.4 लाख रुपीज इन्वेस्ट होते हैं और 59.2 लाख रुपीज का उनका कॉर्पस बनता है। सेकेंड पर्सन मिस्टर बी जो 35 की एज से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग सेम अमाउंट 2000 रुपीज, लेकिन उनके पास टाइम ओरिजिन कितना बचा है, 25 साल का बचा है और इन 25 सालों में उनका जो कॉर्पस है वो इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख रुपए का होगा। कॉर्पस कितना होगा, 33.2 लाख रुपीस। और मिस्टर सी हैं जो 45 साल की उम्र से स्टार्ट करते हैं तो उनके पास टाइम ओरिजिन कितना है, 15 साल का है और 15 साल में उनका 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट होगा दैट इज 3.6 लाख रुपीस और उनका कॉर्पस जो बनेगा दैट इज 7.6 लाख रुपीस। तो इस एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। कब स्टार्ट करना है, जितना जल्दी, जब आपको पता चल जाए कि अब आपके पास पैसा आने लगा है एंड यू हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, तभी से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर दें। क्योंकि यहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिलता है दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसका 8वां अजूबा है। और कहते हैं कि अगर हम लोग 10,000 रुपए पर मंथ 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 1 करोड़ बनाने में लगभग 12 साल का समय लगता है और नेक्स्ट 1 करोड़ बनने में लगभग 3 साल का समय लगता है। इट्स बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इस 2 करोड़ को 5 करोड़ बनने में 2 साल का समय लगता है। तो यहाँ पर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि जितना लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मैंने बताया था, आप छोटे छोटे स्टेप से अपने लिए एक हेल्थी रिटायरमेंट कॉर्पस आप लोग तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एसेट क्लास की बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट क्लास, तो हमारे पास है कि भाई हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कैश अपने पास रखते हैं या फिक्स इनकम प्रोडक्ट लाइक एफडी वगैरह में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जो आपका रियल रिटर्न मिलता है दैट इज फ्रॉम इक्विटी ओनली, क्योंकि इक्विटी जो है वो मार्केट के साथ लिंक रहती है और वहीं से आपको रियल रिटर्न मिलता है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि से आई हैव सम मनी एंड आई एम आस्किंग योर एडवाइस वेयर टू इन्वेस्ट माय मनी, मेरे पास कुछ पैसा है और मैं आपसे एडवाइस लेना चाह रहा हूं कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे? Yes, anyone else from the participant side? What is your advice to me? Shubham says real estate good or Shivani Singh mutual fund good. तो आपके पास आ रहा है रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड, और अब मैं इस क्वेश्चन को रिवर्स करता हूं कि आपके पास कुछ पैसा है एंड यू आर सीकिंग एडवाइस फ्रॉम योर पेरेंट्स
अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से सलाह करते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो वो आपको क्या एडवाइस करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करें? Shreya says FD, good. तो इस व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जो उनका टाइम था उस समय इंडियन मार्केट डेट ड्रिवन मार्केट थी। उस समय इंटरेस्ट रेट आर वेरी हाई। उन्होंने पैसा 6 साल में डबल होते हुए देखा है, 5 साल में डबल होते हुए देखा है, जबकि आज पैसा 12 साल में, 15 साल में जाकर के डबल होगा। मीन्स वी हैव अ लेस इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट्स आर डिक्लाइनिंग डे बाय डे, और कैपिटल मार्केट जो है वो आपका ग्रो कर रहा है। एंड इट्स बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट कंपोजिशन है, 94% पैसा हमारा बैंक एफडी में है, फिक्स इनकम प्रोडक्ट में है, और 6% पैसा इक्विटी में है। और जब ये पैसा रिवर्स होना स्टार्ट हो रहा है तो हमारा कैपिटल मार्केट ग्रो कर रहा है और डेट मार्केट डिक्लाइन कर रहा है। तो यहां से ये चीज आपको समझनी है, व्हाट इज द सिनेरियो राइट नाउ। और करंट अगर हम लोग धारा के विपरीत दिशा में तैरते हैं तो हमेशा घाटे में रहते हैं। उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो हमें हीरो नहीं बनना है, हमें जिस डायरेक्शन में हमको मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है वहां हमको जाना है। अब रिटायरमेंट कॉर्पस का हम लोग कैसे पता लगाएंगे भाई, जब हम लोग रिटायर होंगे तो हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी जिससे हम लोग एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर पाए। तो उसमें जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उसमें हम लोग इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं, टाइम को कंसीडर करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न को कंसीडर करते हैं, सेविंग्स को कंसीडर करते हैं। तो इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं हम लोग एक रिटायरमेंट कॉर्पस डिजाइन करते हैं। अगर आप पीएफआरडी की साइट पे जाएंगे तो वहां पे रिटायरमेंट कॉर्पस और पेंशन कैलकुलेटर्स आर अवेलेबल। तो वहां पर आप जो भी अमाउंट पेंशन के रूप में चाहते हैं तो उसके लिए आपको मंथली कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यू हैव दैट कैलकुलेटर ऑल्सो। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज भी हैं, लेकिन जब हम लोग फिजिकली कभी आपके यहाँ सेशन करेंगे तो उस समय हम ये एक्सरसाइज आपको जरूर कराएंगे। बट द कैलकुलेटर्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, तो वहां से आप इसको जरूर चेक कर सकते हैं। दूसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग कंपाउंड का चेक करें। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना चाहते हैं तो उसको रेगुलर आप इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपका इन्वेस्टमेंट हेल्दी हो जाए। अब रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए व्हाट आर द प्रोडक्ट अवेलेबल, प्रोडक्ट कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि इफ यू गो फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग, तो इसमें आपके पास एक नेशनल पेंशन सिस्टम है, अटल पेंशन योजना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, म्यूचुअल फंड है, एंड पेंशन स्कीम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज। सो देयर आर 5 प्रोडक्ट अवेलेबल इनटू द मार्केट। अब यहाँ पर इनका कंपैरिजन है। तो एनपीएस कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, इक्विटी बॉन्ड में कर रहा है। अटल पेंशन योजना बोथ इक्विटी एंड बॉन्ड्स। पीपीएफ फिक्स इनकम प्रोडक्ट है, तो ये पूरा इसका इन्वेस्टमेंट फिक्स इनकम प्रोडक्ट बॉन्ड्स में जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड इक्विटी एज वेल एज बॉन्ड, पेंशन फंड स्कीम इक्विटी एंड बॉन्ड। फिक्स रिटर्न, तो फिक्स रिटर्न केवल एक प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है, दैट इज अटल पेंशन योजना एंड पीपीएफ। पीपीएफ में इंटरेस्ट की फॉर्म में आपको रिटर्न मिलता है, और अटल पेंशन योजना में गारंटेड पेंशन है, दैट इज वेरी फ्रॉम 1000 टू 5000 रुपीज। बाकी सभी में कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है, देयर इज नो फिक्स रिटर्न। देन इन्वेस्टर कॉस्ट की बात करें तो एनपीएस में जो कॉस्ट है दैट इज 0.26%, विच इज लेसर अमंग ऑल द प्रोडक्ट्स। अटल पेंशन योजना में कोई इन्वेस्टर कॉस्ट अप्लीकेबल नहीं होती है, पीपीएफ में नील है,
म्यूचुअल फंड में 1 से 2% की कॉस्ट आपको लगती है, जबकि पेंशन फंड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज यू हैव टू पे कॉस्ट मोर देन 5%। तो एनपीएस में जो आपकी कॉस्ट है दैट इज बेयर मिनिमम 0.26% है। एडवांटेज क्या है, पोर्टेबल है। आप अगर आज एक ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सेम प्रान नंबर से आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लो कॉस्ट है, टैक्स बेनिफिट है। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, अगर वो 80C के अंदर 1.5 लाख का एडवांटेज लेते हैं तो एडिशनली वो एनपीएस अकाउंट खोल करके 50,000 का एड ऑन एडवांटेज ले सकते हैं अंडर क्लॉज सेक्शन 80 CCT 1B। और इसमें आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, मंथली मोड में भी, रेगुलर पेंशन उसमें भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपका ऑटो विड्रॉल फैसिलिटीज अवेलेबल, जिसमें आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा विड्रॉ होने लगता है। प्री मैच्योर क्लोजर इज पॉसिबल। जो आपके विड्रॉल हैं दे आर टैक्स फ्री एंड नो जीएसटी व्हेन यू परचेज एन्युटी। और अटल पेंशन योजना में भी जो आप कंट्रीब्यूशन देते हैं वो कंट्रीब्यूशन भी आपका 80 CCT 1B में आ जाता है। और फिक्स इनकम अमाउंट है। और इसके लिए जो 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना में एंटर करते हैं तो 40 से लेकर के 210 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करके वो गारंटेड पेंशन ले सकते हैं 1000 to 5000 रुपीज। और जैसे जैसे और ये 40 की एज तक आपके पास अवेलेबल रहता है अटल पेंशन योजना में। द मैक्सिमम एंट्री एज इज 40 years। और जितना जल्दी आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, जो लोग यंग हैं, so they can open their Atal Pension Yojana account and start investing for the guaranteed pension. अब एनपीएस स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ परचेंस पे जाकर के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, प्रान नंबर कर सकते हैं। देन रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी हैं जो आपके सारे डेटा को मेंटेन करती हैं। ट्रस्टी बैंक हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। पेंशन फंड्स आर देयर, कस्टोडियन, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर। और पूरी सारी इस आर्किटेक्चर को मैनेज कौन करता है, दैट इज एनपीएस ट्रस्ट। तो पेंशन फंड जो प्रोवाइडर है दैट इज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एलआईसी, एसबीआई, यूटीआई एंड आदित्य बिरला। पॉइंट ऑफ परचेंस आप हर कहीं पर भी जाकर के अपना पॉइंट ऑफ परचेंस देख सकते हैं। किसी भी बैंक में आप लोग अपना एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्कस कर चुके हैं। और अटल पेंशन योजना के बारे में, और इसमें जो आपका रिटर्न है दैट इज एनएवी बेस्ड रहता है। जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, जब जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और एनएवी के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। इसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट इज अ पेंशन अकाउंट जिसमें आपका 60 years तक का लॉक इन है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 रुपए का है फर्स्ट टाइम में, और एनुअली आप हर फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी है। और नो लिमिट ऑन अदर कंट्रीब्यूशन। और आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक इसमें, सॉरी, अप टू एनी लिमिट यू कैन इन्वेस्ट योर अमाउंट। और 60 साल तक अगर आपको पैसा रिडीम करना है तो केवल 3 रिडम्पशन इसमें पॉसिबल है। टीयर 2 अकाउंट ऑप्शनल अकाउंट होता है। इसमें कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इसमें भी टैक्स बेनिफिट रहता है। देयर आर सम ईएलएसएस फंड अवेलेबल इन टीयर 2 अकाउंट। वहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करके टीयर 2 अकाउंट के इन्वेस्टमेंट पर भी आप लोग एड ऑन इनकम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। Minimum contribution to open the account is 1000 rupees and minimum contribution per annum is 250 rupees. और इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ द टीयर 2 अकाउंट। और आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर कितना रहता है, 0.29% ओनली। प्रान नंबर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। ये आपका एक यूनिक आईडी होती है और इसी आईडी के साथ आप लोग आपका पूरा इन्वेस्टमेंट पेंशन फंड के अंदर होता है।
आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें जब आप अपनी एसेट एलोकेशन करते हैं उसमें दो चॉइस होती है, ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस में जो है, जो पेंशन फंड सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी तरफ से एक प्री डिजाइन कस्टमाइज पोर्टफोलियो आपको देते हैं। एंड इन एक्टिव चॉइस में यू कैन सिलेक्ट ऑन योर ओन, जिसमें ई स्टैंड फॉर इक्विटी, जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लाइफ साइकिल फंड, एसेट क्लास सी इज अ कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट, एन अल्टरनेट एसेट क्लास। तो ई क्लास में आप लोग मैक्सिमम 75% का एलोकेशन कर सकते हैं, बाकी सब में आप लोग 100% का एलोकेशन कर सकते हैं। जैसे इक्विटी है, इक्विटी में आप 75% का मैक्सिमम कैप है, कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर 100% का कैप है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 100% का कैप है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में 5% का कैप। ऑटो चॉइस में जाएंगे तो आप LC 75, LC 50 एंड LC 25, ये कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड होते हैं, जिसमें से आप अपने आप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द एलोकेशन ऑफ LC 75, LC 50 एंड LC 25। तो LC 25 में मैक्सिमम एलोकेशन आपकी किस में होती है? फिक्स इनकम प्रोडक्ट के अंदर होती है, और इक्विटी में केवल 25% पैसा आपके इन्वेस्टमेंट का लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज, तो 25 रुपीज आपके इक्विटी में जाएंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द मनी गोज टू द फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स। और LC 75 में आपका मैक्सिमम एलोकेशन इक्विटी में होता है, रेस्ट 25 गोज टू द कॉर्पोरेट एंड इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा डिबेट का इशू आता है कि जो एनपीएस के रिटर्न है इज फिक्स्ड, और इसी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, क्योंकि लंबे समय पर आपको एन्युटी में जो रिटर्न मिलेगा इट्स फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन वन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इज देयर, दैट इज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आपका रिटर्न ग्रो करना चाहिए, तो उसी के ऊपर अब ये एक डिबेट का इशू है, इसके ऊपर काम हो रहा है, जिसमें what would be the outcomes you may be aware according to। और अभी तक हम स्कीम रिटर्न की बात करें, स्कीम रिटर्न में अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की रिटर्न की बात करें तो वहां से रिटर्न अभी 9.66% का रहा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 10.10% का रहा है, इक्विटी के अंदर 12.74% का रिटर्न रहा है, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में 9.92% का रिटर्न रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में 10.02% का रिटर्न रहा है। तो अभी तक मैक्सिमम रिटर्न इक्विटी में मिला है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना डिसीजन भी इसमें ले सकते हैं। देन पार्शियल विड्रॉल, अभी जो मैंने बताया कि आपका जो शुरू का 3 साल का कॉर्पस है उसका 25% आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, और मैक्सिमम 3 विड्रॉल आर पॉसिबल टिल द एज ऑफ योर रिटायरमेंट। टीयर 2 में आप n नंबर ऑफ विड्रॉल आर पॉसिबल, और जो पैसा आप रिडम्पशन के लिए डालते हैं तीसरे दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब एन्युटी क्या है? एन्युटी इज और पेंशन। जब हम लोग रिटायर होते हैं तो उस समय जो हमारा पैसा है वो एक एन्युटी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके ऊपर जो रिटर्न हमें मिलता है दैट इज आवर पेंशन। अब एन्युटी प्लान वेरी करते हैं एज पर योर चॉइस। अगर आप जो भी आपकी चॉइस है, आप अपने लिए पेंशन चाहते हैं, अपने साथ साथ अपनी वाइफ के लिए पेंशन चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए पेंशन चाहते हैं, कितने समय के लिए पेंशन चाहते हैं, तो उन सारी बातों के ऊपर आपके पेंशन डिसाइड होती है। तो जब आप रिटायर होते हैं उस समय ये आप अपना सिलेक्शन करते हैं, एज पर योर चॉइस योर पेंशन विल वेरी अकॉर्डिंगली। ऑनलाइन एक्सेस आप लोग कर सकते हैं। प्रान नंबर आप मोबाइल ऐप के अंदर जो है एनपीएस की ऐप है उसको डाउनलोड करके कभी भी
अपना कंट्रीब्यूशन आप लोग चेक कर सकते हैं, और जो कॉर्पस है उसे भी चेक कर सकते हैं। स्कीम के अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं वो चेंज भी आप लोग कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल देम डायरेक्टली, दैट इज 1800-110-069। ये एनपीएस पोर्टल है, इसके ऊपर जाकर के भी आप अपने जो भी फंड आपने सिलेक्ट किया है उनका पोर्टफोलियो क्या है, एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी क्या है, एवरीथिंग यू कैन चेक। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो भी आपकी कंप्लेंट होती है वो विद इन 30 डेज उसका सॉल्यूशन हो जाता है। FAQs आर आल्सो अवेलेबल ऑन एनपीएस वेबसाइट, तो कोई भी आपकी क्वेरी है तो वहां पर जाकर के आपको सबके आंसर मिल जाते हैं। और PFRD never make call to any individual requesting them to deposit money or release of fund from NPS and PFRD. Any such communications received to defraud may be informed to police immediately. तो पेंशन फंड अथॉरिटी आपको कभी भी कोई ऐसी रिक्वेस्ट या कॉल नहीं करती है कि आप अपना पैसा डिपॉजिट कीजिए या अपने पैसे को बाहर निकालिए। अगर कोई ऐसी क्वेरी कॉल आपके पास आती है तो आप इमीडिएटली उसको रिपोर्ट कर सकते हैं टू द पुलिस। सेकेंड अटल पेंशन योजना है, जैसा अभी हम लोग बता रहे थे, अटल पेंशन योजना में आपको गारंटेड पेंशन मिलती है फ्रॉम 1000 to 5000 रुपीज, और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन एज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जितना लंबे समय, जितना डिले करके आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो एक अच्छा खासा फंड आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेटर यू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। 18 में अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आप 40 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके यू आर एलिजिबल फॉर द पेंशन ऑफ 1000 रुपीज पर मंथ, and by investing 210 rupees you are eligible to have a pension of 5000 rupees per month. और अटल पेंशन योजना की ब्यूटी क्या है, पहले ये पेंशन आपको मिलती है, फिर आपके स्पाउस को मिलती है, और दोनों की डेथ के बाद जो पैसा है वो आपके नॉमिनी को पे हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं, किसी ने 1000 रुपए पेंशन की बात करी है तो स्पाउस के बाद उसके जो बेनिफिशियरी है, नॉमिनी है, उसको लगभग 2,35,000 रुपए के करीब ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये अटल पेंशन योजना का इन्वेस्टमेंट चार्ट है। जिस एज में आप स्टार्ट करते हैं उस एज के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज देयर कि 1000 रुपए लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है, 2000 के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है, 3000 के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और आपका कितना पैसा इन्वेस्ट होगा। सो दैट इज रिटर्न ऑफ कॉर्पोरेट अमाउंट ऑफ द नॉमिनी। अब इसमें अगर आप 1000 रुपए महीना पेंशन के लिए 40 रुपए महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो नॉमिनी को रिटर्न होगा दैट इज 1.7 लाख रुपीज, 2000 के केस में 3.4 लाख रुपीज, 3000 के केस में 5.1 लाख रुपीज, 4000 के केस में 6.8 लाख रुपीज, और 5000 के केस में 8.5 लाख रुपीज आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाते हैं। यूजर फ्रेंडली फीचर्स हैं, इसका भी प्रान नंबर आपको मिलता है, और आप ई प्रान के हेल्प से कभी भी अपना स्टेटमेंट, पासबुक यू कैन चेक। APY के भी मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड करके कभी भी आप अपना कॉर्पस चेक कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ होल्डिंग को चेक कर सकते हैं। सो दीज आर द ओवरऑल फीचर ऑफ द अटल पेंशन योजना। आप अपने अमाउंट को अपग्रेड डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, ऑप्शन टू डाउनलोड ई प्रान। इंटरनेट बैंकिंग से भी अपने अटल पेंशन योजना अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइबर कभी भी इस योजना को छोड़ सकता है। ऑप्शन फॉर चेंजिंग बैंक्स, इंटर बैंक शिफ्टिंग, आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भी शिफ्ट कर सकते हैं।
Option for continuation of APY by spouse in case of death. अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो तो स्पाउस भी अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर सकती है। SMS ऑन रजिस्ट्रेशन एंड क्रेडिट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं या अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको एक SMS मिलता है। तो कोई भी ग्रीवेंसेस हैं तो आप क्रेडिट जो रेटिंग रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं उनको अप्रोच करके अपनी ग्रीवेंसेस एड्रेस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अटल पेंशन योजना को अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। So these are some of the important links. इसका आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई भी आपको फर्दर जानकारी चाहिए तो इन लिंक्स के थ्रू आप लोग अदर इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। So now the session is open for question answer. If you have any query, you can ask. You can unmute yourself and put the question directly, or you can submit your question through chat box. Yes, अगर आपकी किसी की कोई क्वेरी है, if you want to ask something, तो आप पूछ सकते हैं। Yes. Thank you, sir. That was very informative and useful session on how we can enjoy our post-retirement life by proper financial management. Sir, you are a matchless amalgam of knowledge, wisdom, and expertise. I hope everyone has attained maximum out of this lecture. If anyone has any query, you can please ask. Anyone having any question? Okay, now I invite Professor Nazia Rasool for a formal vote of thanks. Thank you so much, Shipra ma'am. I suppose I am audible. Yes, ma'am. Greetings one and all present on this platform. First and foremost, I, on behalf of organizers of this webinar, am humbled to express a really hearty gratitude to our respected guest speaker, Dr. Sanjay Kumar Agarwal. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time and explaining vividly the practical and efficient ways to manage our finances properly so that we can live a secure and luxurious life even after retirement. Heartfelt thanks to you, sir, for opening new vistas of knowledge for us and helping us keep abreast with the recent trends in investment. Everybody would agree we had a very productive deliberation, which is very much relevant and useful for every one of us. Thank you so much, sir. Now moving on, our special thanks to our Honorable Principal, SPMR College of Commerce, Dr. Surinder Kumar Sharma, for always guiding and motivating us for these types of knowledge celebrations and for being a solid support system. Thank you so much, sir. A webinar like this requires meticulous planning and concerted efforts of many hands to make it a unique one. I would like to express a deep sense of appreciation to all the members of PFRGA and Manodarpan Psychology and Placement Cell. A big thanks to Dr. Ashu Manhas, Dr. Shriya, Dr. Rita Minia, Dr. Shipra, Dr. Jagmeet, Dr. Faiza, Dr. Rajni, Dr. Afan, and all the members of PFRGA for their dedication, logistics, and genuine efforts to make this webinar a resounding success. Finally, I would like to thank all the professors, teaching and non-teaching, faculty and fraternity for
keeping alive in them the good student and the very best learner. Thank you one and all present on this platform. Thank you once again. Thank you very much, ma'am. From my side, I'm also thankful to the management and the principal of Government SPMR College of Commerce, Jammu, Professor Asu Manhas, Dr. Rika, and Dr. Shipra, all the faculty members, those who have joined us from each and every corner of country. And one of my friends, Sonu Kumar, journalist, is also there. So thank you very much. Thank you all. Without your presence, this event can't be successful. Sir, now I request all to switch on your cameras for a group photograph. Yes, yes, yes. So All the participants are requested. and I hope you will be motivated from this session and plan your finances accordingly and have a healthy and prosperous financial life. So thank you very much. Thank you so much, sir. With this, we end. Okay, thank you, sir. Thank you very much.